Hello my dear student, today we study about the properties of integers, properties of addition and subtractions of integers. And the first property is closure property under addition and subtraction. So what is the meaning of closure property of under addition and subtraction? तो पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, उसके बाद देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शंस. तो फर्स्ट है क्लोजर, CLOSURE, closure. What is the meaning of the closure? Suppose here for integer, closure means when we add two whole numbers we get always a whole numbers, like 2 plus 3 equal to 5. So 5 is also whole number. So in case of integers, when we add two integers, then we get is always a integers. Here numbers operation integers means here result. Let's suppose we take integers -1 and -2. Operation here addition. When we add -1 and -2, -1 and -2, so -1 and -2 means -1 plus -2. The answer is -1 plus -2 ये हो जाएगा -1 plus into -2, -1 and -2 having the same. ये -1 -2 है, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों को सेम साइन है, तो आंसर कितना हो जाएगा -3. सो -3 इज ए इंटीजर. यस. सो व्हेन वी एड, इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन वी एड टू इंटीजर्स their sum is also integers, means when we add two integers we get always a integers. This property is known as closure property under additions. If A and B are two integers, when we add A plus B we get C, and C is another integer, suppose C, then this property is known as closure property under additions. So addition is closed under so integers are closed under additions. In case of subtraction, suppose 3 and -2, subtractions, we subtract 3 from -2 minus 3, then -2 minus 3 equal to -5. Here -5 is also integers. Yes, it means when we subtract one integer from another integers we get a always integers. This property is known as closure property under subtractions. So integer is closed under subtraction. When we subtract, if A and B are two integers, then A minus B we get C, and C is also integers, then this property is known as closure property under subtraction. So integers are closed under
सब्ट्रैक्शंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमको इंटीजर्स ही मिलता है। यही प्रॉपर्टी है, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। और दो इंटीजर्स को अगर सेपरेट करते हैं तो हमको एक इंटीजर्स ही मिलता है। इस प्रॉपर्टी बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शंस। If a and b are two integers, then a minus b equal to c and c is another integers. It means when we separate one integer from another integers, we get integers. This property is known as closure property under subtractions. So closed under subtractions. तो कोई भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमको इंटीजर्स मिलता है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अंडर एडिशन। अगर हम दो इंटीजर्स को में से एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर्स में से सेपरेट करते हैं तो हमको एक इंटीजर्स ही मिलता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शंस। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन आल्सो एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। We see the next property, commutative property. Suppose if a and b are two integers, then a plus b should be b plus a. A plus b equal to b plus a. It means a and b are two integers, then a plus b equal to should be b plus a. This property is known as commutative property of addition. So addition, in case of addition and a equal a and b are two integers, then a minus b should be equal to minus b upon a. We see the first, a plus b equal to b plus a. Suppose minus 3 and 2 are two integers. First, minus 3 plus 2 equal to minus 3 plus 2 minus 1. When we 2 plus minus 3 equal to plus into minus 3 equal to minus 1. In case of a plus b, we get minus 1. In case of it change the order, b plus a, 2 minus 3 equal to minus 1, we get same answer minus 1. So addition is commutative for integer. हमको यहाँ भी minus 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी minus 1 मिल रहा है। मतलब अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, a प्लस b करें और उसको चेंज कर दें, ऑर्डर को b प्लस a कर दें, तो उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर इंटीजर्स। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। वी सी द फॉर सब्ट्रैक्शन, minus 3 minus 2. If minus 3 and 2 are integers here, then a minus b minus 3 minus 2 equal to minus 5. When we change their orders, two minus 3, then 2 minus 3 क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 minus into minus plus 3 equal to 5. We get in case of a minus b equal to minus 5 and b minus a equal to 5. Both answer have not equal, not same, therefore subtraction is not commutative for integer. And ये commutative property of subtraction is not applicable for integer. Here addition is commutative for integers and subtraction is not commutative for integers. We see the next property, associative property. So what is the meaning of the associative property?
Suppose if A, B and C are three integers, when we add A with sum of B and C, A plus sum of B and C should be is equal to sum of A and B added with C. अगर हम क्या करें, तीनों इंटीजर में से पहले A को इन दोनों के सम के साथ ऐड कर दें तो वो फर्स्ट एंड बी को सम निकालने के बाद सी के साथ ऐड करने के इक्वल होना चाहिए. इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c. It means the sum of a and the sum of b and c should be equal to the sum of a and b with sum of c. In case of subtractions, a minus b minus c should be a minus b minus c. a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ये इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है. सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. अभी एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे. a plus b plus c is equal to a plus b plus c. तो पहले a added with the sum of b and c, here b the sum of b and c is added with the c. ये होना चाहिए. We see the next property. Next property, additive identity. Additive identity. Additive identity means when we add 0 with any integers, we get a same integer. Suppose if a is an integers added with 0, if a is an integers added with 0, we get a integers. So therefore 0 is known as additive identity or additive elements also. additive elements इसका मतलब है कि अगर हम 0 को कोई भी इंटीजर्स में, जैसे -1, 2, -3, when we add 0 in all three integers, -1 plus 0 -1, 2 plus 0 2, -3 plus 0 -3. It means when we add 0 with any integers, we get a same integers. Therefore 0 is known as additive identity or additive elements or for the integers. तो यहाँ पर a plus 0 equal to a, इसलिए क्या बोलेंगे हमको, 0 is known as additive elements or additive identity for integers. तो there are so the properties of integers are closure property under addition and subtraction, commutative property, associative property and additive identity or additive elements. Write down a pair of integers whose sum is -3, difference is -5, difference is 2, sum is 0. A pair means दो नंबर्स की जोड़ी को हम बोलेंगे एक पेयर. राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर, फर्स्ट सम इज -3, b difference is -5, c difference is 2 and d sum is 0. So how can write the pair? Pair means we take any numbers, any integers. तो first a sum is -3, तो sum is -3. a pair means दो numbers,
तो सम इज -3 बोला है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू -3। अब यहाँ सम को आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं जिसका सम -3 होना चाहिए। तो सम इज -3 बोल रहा है, सम इज -3, तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं सम इज -3। एक और हम लेते हैं, मान लो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू -3। अगर सम नेगेटिव में है तो इसके दो कंडीशन हो सकता है कि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, जैसे -1 प्लस -2 इक्वल टू -3। यही हो सकता है यहाँ पर कि सम -3 आ रहा है, तो बिगन नंबर नेगेटिव में लेते हैं और स्मॉल नंबर पॉजिटिव में। तो जैसे यहाँ पर -5 प्लस 2 वी गेट -3। तो आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं जिसका सम -3 होना चाहिए, जैसे -1 प्लस -2 इक्वल टू -3, -5 प्लस 2 इक्वल टू -3 और द रिक्वायर्ड आंसर कोई भी हो सकता है। सेकेंड, डिफरेंस इज -5, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू -5। यहाँ पर डिफरेंस -5 है, मतलब डिफरेंस -5 इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स में से दोनों नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट इंटीजर्स माइनस सेकेंड इंटीजर्स इज इक्वल टू -5। तो डिफरेंस इज -5। सो क्या क्या हो सकता है, डिफरेंस इज -5। मान लो हम यहाँ रख लेते हैं -2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2 +2 हो गया। तो हम कौन से नंबर में +2 कर लेते हैं, कौन से नंबर में +2 करें, तो मास को -5 मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा -7 -7 -2। when we subtract -2 from -7 we get a -5। अब बोलेंगे सर कैसे -5 आया, तो -7 तो हो गया यहाँ, -7 -2 +2, तो -7 +2 कितना हो जाएगा -5। सो द नंबर इज -7 and -2, देयर सम इज देयर डिफरेंस इज -5। और यहाँ से हम भी लिख सकते हैं, सपोज द डिफरेंस बोला है, तो यहाँ हो सकता है -9 माइनस, हम -9 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, हमको -5 मिलना चाहिए, तो वी सब्ट्रैक्ट -4 तो वी गेट -5। तो -9 एंड -4 आर पेयर whose difference is -5। जैसे माइनस 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 -4, ये हो सकता है माइनस +4 इक्वल टू -5। You think any number whose difference is -5, so the pair is -7 and -2, -9 and -4. Next, difference is 2. Say difference is 2, तो first number minus second number is equal to 2। तो अब हम क्या दो नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 मिलना चाहिए, डिफरेंस 2 बोलो तो माइनस आया यहाँ, मान लो हम रख देते हैं 4। अगर डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है, अगर मान लो हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब बताइए कौन से नंबर में से 4 को सब्ट्रैक्ट 2 आएगा, 6। अब कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिए हम लोग 50, तो कौन सा नंबर से 50 सब्ट्रैक्ट करने की 2 आना चाहिए, 52। सो पेयर इज 6 and 4, 52 and 50 हो सकता है। इनके सब नेगेटिव,
नेक्स्ट इन केस ऑफ नेगेटिव, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में लेंगे। सपोज अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से वी सब्ट्रैक्ट -7, तो माइनस इंटू माइनस +7 हो गया, माइनस इंटू माइनस +7। तो +7 कौन से नंबर के साथ ऐड करें कि हमको 2 मिले? ये हो सकता है -5। सो द पेयर इज -5 एंड -7। यहाँ से हमको पेयर मिल सकता है -5 एंड -7 हुज डिफरेंस इज 2। कोई भी नंबर हो सकता है, हम लोग सिर्फ में छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं। सेकेंड डी, सम इज 0, सम इज 0। तो सम इज 0 मीन्स क्या हो गया? यहाँ से मान लो कोई नंबर लेते हैं, सपोज 4 प्लस ब्लैंक 0। तो 4 में क्या एड करें? -4। सम इज 0 मीन्स 4 प्लस -4 इक्वल टू 0। पॉजिटिव के साथ हम उसी नेगेटिव नंबर से ऐड करेंगे, 0 मिलेगा। अगर मान लो हमें नेगेटिव ले लेते हैं माइनस, तो +4 करेंगे इक्वल टू हमको 0 मिलेगा। तो सम इज 0 आया तो इसको सम, कभी भी सम इज 0 आता है तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20, तो 20 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी 20 में क्या प्लस करें, -20। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से 0। -20 में क्या ऐड करें कि हमको 0 मिलेगा, 20 इक्वल टू 0। सो here pairs are 20 and -20, -20 and 20, 4 and -4, -4 and 4 are the pairs whose sum is 0। सो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को पेयर में बोला है तो 2 की जोड़ी में होना चाहिए, जैसे माइनस यहाँ पर -1 एंड -2 देयर सम इज -3। सम बोला है तो प्लस होना चाहिए दोनों को ऐड करने पर। डिफरेंस बोला तो माइनस होना चाहिए, -7 एंड -2 आर whose difference is -5, 6 -4 whose difference is 2, 4 and -4 whose sum is 0, 20 and -20 whose sum is 0, -5 and -7 their difference is 2, -9 and -5 so difference is -5, -5 and 2 their sum is -3। Property of integers are used to fill in the blanks types questions। अगर कोई fill in the blanks क्वेश्चन दिया है तो properties of integers उसमें काम आ सकता है। जैसे दिया है यहाँ से ले लेते हैं -50 प्लस -30 इक्वल टू ब्लैंक प्लस -50। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस ए। या -50 है तो श्योर यहाँ पर क्या आना चाहिए, -30। यहाँ हो जाएगा -30। और सेकंड टाइप क्वेश्चन हो सकता है जैसे -20 प्लस ब्लैंक इक्वल टू -20। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -20 प्लस ब्लैंक इक्वल टू -20 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 0। अगर -20 प्लस 0 कर दें तो हमको सेम नंबर मिलेगा -20। तो यहाँ पर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी और यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस फॉर इंटीजर्स, या एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। और देखते हैं सपोज -8 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। तो -8 के साथ कौन सा नंबर ऐड करके 0 मिलना चाहिए, पॉजिटिव 8 है ना, ये हो सकता है 8। सो दीज आर -8 प्लस 8 करें हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, एडिटिव इनवर्स, -8 एडिटिव z इक्वल टू 0। अनदर देखते हैं यहाँ से -2 प्लस -3 प्लस -15
equal to blank plus -3 प्लस -2। तो ब्लैंक में क्या सा नंबर आएगा, -2 प्लस -3 प्लस -15 इक्वल टू ब्लैंक प्लस -3 प्लस -2। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस b प्लस a। तो यहाँ पर c आना चाहिए, तो यहाँ होगा -15 या -15 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा -15। So the properties of integers are used for filling in the blanks type of questions. Multiplication of integers, तो आप लोग प्रॉपर होमवर्क करते जाइए, रेगुलर चेक करवाइए। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन को सेंड कीजिए, लेकिन आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, 1 बाय 1 करते जाइए। अब लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन, देन नेक्स्ट राइट द सॉल्यूशंस एंड गिव द आंसर इन प्रॉपर वर्ड्स और प्रॉपर sentences. Thank you. Have a nice day.